Yes, but I am on page number 44, 45 of our NCERT book. And question number 1 we have discussed. What is the basis of classification of alkenes? So I have explained you 3 to 4 points. ठीक है, we know that there are 3 classes of alkene: class chlorophyceae, class phaeophyceae, that is brown algae, and class rhodophyceae, that is a red algae. So you have to write the points according to table 3.1 that is given on page number 33 of your NCERT book. Okay, bete? So 3 classes are there: chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae. And what are the main characteristics that are they are used to classify these 3 classes of algae? तो मैंने आपको बताया था major pigment is first point. So in different classes, so in class chlorophyceae we have chlorophyll A and B. In class phaeophyceae, which is brown algae, see the table, chlorophyll A, C, fucoxanthin is there. And in class rhodophyceae, ठीक है, along with the chlorophyll A and D, there is one another special pigment and that is phycoerythrin. तो phycoerythrin जो है वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लास rhodophyceae में. Then you have to write down the type of the stored food. आपने बताना है कौन सा फूड स्टोर होता है तीनों क्लासेस में. तो क्लास chlorophyceae में stored food is starch. Then in class phaeophyceae mannitol and laminarin is there. और अगर हम rhodophyceae की बात करते हैं तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है इट इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल. ठीक बेटे, सेल वॉल कंपोजिशन के बारे में बताएंगे. इन क्लास chlorophyceae द सेल वॉल कंपोजिशन इज सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल. अगर phaeophyceae की बात कर रहे हो तो उसमें सेलुलोज भी है एंड एल्जिन भी है. और अगर हम rhodophyceae की बात कर रहे हैं तो वी हैव सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स. ठीक है. फिर फ्लैजिला के बारे में बता सकते हो. 2 to 8 इक्वल साइज फ्लैजिला प्रेजेंट एट एपिकल पोजीशन इन chlorophyceae. In phaeophyceae 2 unequal flagellas are there which are present at lateral position. ठीक बेटे, लेटरल पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसे हम साइड वाली पोजीशन कहते हैं. देखो, टॉप वाली जो होगी वो एपिकल होगी, बॉटम वाली जो होगी वो बेसल होगी और जो साइड्स वाली होगी वो लेटरल पोजीशन होगी. ठीक है. rhodophyceae जो है उसमें फ्लैजिला होते ही नहीं है क्योंकि चाहे उसमें आप गैमेट्स की बात कर रहे हो चाहे आप स्पोर्स की बात कर रहे हो, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं. ठीक बेटे. फिर आप हैबिटेट के बारे में बता सकते हो कि chlorophyceae के मेंबर दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड वेरी लेस इन ब्रैकिश वाटर. ठीक है. पर अगर वो कहता है कि हम बात कर रहे हैं phaeophyceae की, तो phaeophyceae जो है वो मैरीन एल्गी है. फ्रेश वाटर में बहुत कम मेंबर्स नजर आएंगे एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फाउंड इन ओशियन वाटर जो कि सलाइन होता है. ठीक. और इसके अलावा ब्रैकिश वाटर. और उसके बाद जो है फ्रेश वाटर मेंबर्स जो है rhodophyceae में भी कम होते हैं, बट ब्रैकिश वाटर में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर फाउंड एज वेल एज इन सलाइन वाटर. सो ऑल ऑफ दीस पॉइंट्स यू कैन राइट इन क्वेश्चन नंबर 1. ओके बेटे. देन सी द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. When and where does reduction division takes place in the life cycle of a liverwort? ठीक है. आपने मुझे ये बताना है कि अगर हम liverwort का लाइफ साइकिल एक वी आर स्टडिंग. ठीक. अगर हम मॉस की बात कर रहे हैं, अगर हम फोन की बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की एंड एंजियोस्पर्म की. ठीक है. तो रिडक्शनल डिवीजन मींस मेयोसिस इनके अंदर कब होता है? हाँ जी. यू कैन रेज योर हैंड. Yes, but you can raise your hand if you know the answer, and if you don't know, I will tell. Anybody want to speak? No one? Okay, पेंसिल रखेंगे हाथ में. ठीक है. राइट डाउन. आपसे पूछा गया है in case of liverwort when the reductional division takes place. So recall the life cycle of the liverwort. What you see? That main plant body कैसी थी? Gametophyte थी and on that gametophyte. Okay बेटे. And 3D4 archegoniophore is there and on 3D4 archegoniophore it bears antheridia and archegonia. Okay. So these antheridia and archegonia, ठीक है, they have anthozoids. ठीक है. इनके अंदर क्या बने थे? anthozoids बने. तो देखो liverwort जो है उसमें आप ब्रायोफाइट की बात कर रहे हो, ब्रायोफाइट में liverwort आती है. तो मेयोसिस कब हुआ था? याद रखिए कि these anthozoid and excel when they fuse together they form zygote and zygote converts into sporophyte.
A sporophyte nucleus, it goes into the capsule of the sporophyte का जो कैप्सूल था ना, उसके अंदर जाइगोट न्यूक्लियस आ गया था, उसमें मियोसिस हुआ था। तो लिवर गॉट में आप लिखेंगे कि मियोसिस टेक्स प्लेस इन द कैप्सूल ऑफ द स्पोरोफाइट। ठीक है, अगर मॉस की बात कर रहे हैं देन मॉस में भी मियोसिस कहां पर हुआ है? इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर जाइगोट न्यूक्लियस में हुआ। ओके बेटे, अगर फर्न की बात कर रहे हैं तो याद करिए फर्न के अंदर मियोसिस कहां पर हुआ था? ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है फर्न के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, तो देखो बेटे टेरिडोफाइट्स जो है उसके अंदर, ठीक है, मेन जो लाइफ साइकिल है वो स्पोरोफिटिक होता है, डिप्लॉयड होता है। एंड डिप्लॉयड में आपको बताया था लीव्स आर प्रेजेंट, तो 2 लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल्स। एंड इनसाइड द स्पोरोफिल्स स्पोरेंजिया, यू कैन से स्पोरोफिल्स के ऊपर कोन लगते हैं व्हिच आर मेल एंड फीमेल कोन्स। एंड इनसाइड द मेल एंड फीमेल कोन व्हाट इज प्रेजेंट? माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। ओके बेटे, so microsporangia and megasporangia they contain microspore mother cell, megaspore mother cell। तो यहाँ पे मियोसिस जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल्स में हुआ है, और उससे माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बने हैं। एंड व्हेन दे जर्मिनेट दे फॉर्म द प्रोथैलस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। ठीक है, फर्न्स के केस में। अब मैं जिम्नोस्पर्म की बात कर रही हूँ, तो देखो बेटे जिम्नोस्पर्म्स में मियोसिस तब हुआ था जब एंथर जो है उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल जो प्रेजेंट थे उसमें मियोसिस हुआ था, तो उससे माइक्रोस्पोर्स बने थे जो रिड्यूस्ड टाइप के माइक्रोस्पोर्स थे, और उन्हीं ने आगे उनको नेम दिया गया था पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस हुआ था और मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुआ था, जिससे 4 मेगास्पोर बने थे एंड 3 डीजेनरेट हो गए थे एंड 1 सर्वाइव किया था। तो जिम्नोस्पर्म्स के केस में आप लिखोगे मियोसिस टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल। ओके बेटे, तो प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन, एंजियोस्पर्म्स में भी अगेन माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, और उसके बाद उससे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन बने, और मेगास्पोर्स मदर सेल में मियोसिस होने से मेगास्पोर बने थे 4, और उसमें से 4 जो थे आउट ऑफ 4 3 डीजेनरेट एंड 1 सर्वाइव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। नेम 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कोई भी 3 ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स के आपने नेम बताने हैं जिनके अंदर आर्किगोनिया जो है वो प्रेजेंट रही है। ठीक है, एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम। हाँ जी, बताइए मुझे कौन से 3 ऐसे प्लांट ग्रुप्स हैं जिनमें आपको आर्किगोनिया नजर आई है? यस बेटे सृष्टि। Bryophytes, pteridophytes and gymnosperms. यस बेटे, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटे, ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनिया बिल्कुल थी। अगर आपको याद है गैमेटोफाइट पे आर्किगोनियोफोर, उसके अंदर आर्किगोनिया। ठीक है, उसी तरह से टेरिडोफाइट्स में भी आर्किगोनिया थी। आर्किगोनिया इज प्रेजेंट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स टू। ठीक है, जब प्रोथैलस के ऊपर याद आ रहा है, प्रोथैलस पे जब एंथ्रिडियोफोर आर्किगोनियोफोर लगे थे तो उसमें आर्किगोनिया भी थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स में भी आर्किगोनिया थी। वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर थी आर्किगोनिया, कि जब जिम्नोस्पर्म्स में 4 मेगास्पोर्स बनती है, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 डीजेनरेट एंड 1 सर्वाइव। तो आपको बोला था कि सर्वाइविंग मेगास्पोर कंटेन 2 to 3 आर्किगोनिया। ठीक है, तो तीनों के अंदर जो है आर्किगोनिया प्रेजेंट थी। तो किसी भी एक का लाइफ साइकिल आपने एक्सप्लेन करना है, तो उसमें से आप कोई भी एक ले लीजिए, टेरिडोफाइट का, चाहे जिम्नोस्पर्म्स का, चाहे ब्रायोफाइट का, नो प्रॉब्लम। नाउ मेंशन द प्लॉडी ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोनिमल सेल ऑफ ए मॉस। ठीक है बेटे, प्लॉडी वर्ड का मतलब होता है कि आपने ये बताना है कि वो हैप्लॉइड है या फिर वो डिप्लॉइड है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ आपके लिए। तो आपने मुझे ये बताना है कि प्रोटोनिमा जो मॉस के अंदर फॉर्म हुआ था, क्या वो डिप्लॉइड था या हैप्लॉइड था? हाँ जी, Haploid. हाँ जी, धनिका, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Haploid. ओके, एनी अदर स्टूडेंट? प्रोटोनिमा, देखो बेटे 2 थे, प्राइमरी प्रोटोनिमा
देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, बस तुमने ऐसे याद रखना है कि भी प्रोटोनीमा स्टेज जो है वो किससे डेवलप हुई है। तो उसमें देखो फर्स्ट लाइन ही लिखी हुई है कि व्हेन द ये दो haploid spore they germinate, तो फर्स्ट स्टेज अपीयर्स एंड दैट इज नोन एज द प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, तो प्रोटोनीमा स्टेज यहाँ पे हैप्लॉइड। ओके बेटे, नेक्स्ट देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो डाइकॉट्स में बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हाँ जी बेटे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस व्हिच लेटर डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है कि ट्रिप्लॉइड है, बताइए। ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड है बेटे, बिल्कुल ट्रिप्लॉइड है। यस, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और वन सेकंड मेल गैमेट के फ्यूज होने से ये बना है, तो ये ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, लीफ सेल ऑफ ए मॉस, मॉस के जो लीफ सेल हैं वो कैसे हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है, बिल्कुल हैप्लॉइड है, क्योंकि उसकी मेन लाइफ साइकिल जो है ना वो हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक फेज उसमें डोमिनेंट है। ओके बेटे, प्रोथैलस सेल ऑफ ए फर्न, फर्न के अंदर जो प्रोथैलस बनता है, जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है, बिल्कुल हैप्लॉइड है, क्योंकि वो जब क्या होता है मियोसिस होता है ना, मियोसिस होने के बाद जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं ना, उनकी जर्मिनेट होने से ही बनता है। तो देखो किसी भी चीज में इफ मियोसिस इज देयर दिस मींस हैप्लॉइड कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, जो भी स्पोर जर्मिनेट करेंगे वो हैप्लॉइड होंगे और उससे बनने वाली चीज भी हैप्लॉइड होगी। ओके बेटे, तो अनदर देखिए, फिर कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं, एक हमारा स्किप हो गया, यस, गैमा सेल इन केस ऑफ मार्केंशिया, मार्केंशिया में जो गैमा सेल्स हैं हैप्लॉइड, वो भी बेटे हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरिस्टेम सेल्स ऑफ ए मोनोकॉट, मोनोकॉट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, कैसे सेल्स हैं? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है, बिकॉज एंजियोस्पर्म्स जो है वो खुद डिप्लॉइड होते हैं एंड स्पोरोफिटिक फेज उसमें डोमिनेंट है। ठीक है, ओवम ऑफ ए लिवरवॉर्ट, लिवरवॉर्ट जो है उनका जो ओवम है लिवरवॉर्ट का, हैप्लॉइड। ओवम का मतलब यहाँ पे एग सेल से है और वो आर्किगोनिया के अंदर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, जाइगोट ऑफ ए फर्न, फर्न का जाइगोट डिप्लॉइड। बिल्कुल, हमेशा ही याद रखिए कि जाइगोट हमेशा ही डिप्लॉइड होता है। ठीक बेटे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमें वेरी इजीली मिल जा रहा है, तो जहां पे हमने एल्गी स्टडी किया है ना, तो सी आई एम ऑन पेज नंबर 32, देयर इज वन पैराग्राफ गिवन एंड द स्टार्टिंग लाइन इज एल्गीज आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, so many points are given here. So first point is half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. This is the first point. Okay, point number 2, point number 2 जो है उसमें आप देखोगे कि ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन गैस जो है जो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है वो भी हमें एल्गी से मिलती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ठीक है, which form the basis of food cycles of aquatic animals। तो जितने भी aquatic animals हैं वो algae को as a food लेते हैं। फिर आप मेंशन करोगे there are some specific type of algal species, Porphyra, Laminaria and Sargassum, marine algae, and they are used as food। ठीक है, certain marine algae such as red and brown algae, they have the property of to act as hydrocolloids, water holding substances। फिर आप लिखोगे एल्जिन which is a brown algae and carrageen which is a red algae। ठीक है, they are used for commercial production of agar agar। agar agar एक ऐसा केमिकल है जिसे कल्चर मीडियम की फॉर्म में यूज किया जाता है बैक्टीरिया का कल्चर करने के लिए या कोई भी चीज का कल्चर करने के लिए। ठीक है, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया जो है वो ऐसी एल्गीज हैं जिन्हें हम आइसक्रीम्स और जेलीज जो है उनका टेस्ट इनहांस करने के लिए यूज करते हैं। एंड देयर आर टू अनदर टाइप ऑफ एल्गी, क्लोरेला and spirulina। ठीक बेटे, these chlorella and spirulina are such type of algae which are very much rich in proteins and they are dry spores। they can be used by the people who are space travelers। अगर वो उनकी 1 या 2 पिंच ले लेते हैं ना इनको ड्राइड फॉर्म में, तो उनको
इतनी एनर्जी मिलती है जैसे 4 चपाती खाने पे मिल रही थी। तो इतनी सारी चपाती राइस तो वो ले जा नहीं सकते स्पेस में, पर इनको ड्राइड फॉर्म में जरूर पैकेट्स में लेके जा सकते हैं। तो अगर वो 2 पिंच लेंगे तो उनको 4 या 5 रोटियों जितनी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक बेटे, अब आता है जिम्नोस्पर्म्स का। तो एक चीज याद रखिए कि जिम्नोस्पर्म्स की जो वुड होती है इसको हम फर्नीचर के लिए यूज करते हैं, बहुत ही अच्छी वुड है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर फर्नीचर। Another thing is cones of the gymnosperms. ठीक है, these cones are used for decorative purposes in our houses. उसके बाद there is one drink that is obtained from fermented pine juices. ठीक है, you have also listened about this drink from your English teacher, toddy drink. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पाइन ट्रीज होती है ना, उसका जो मिल्क होता है उसको लेकर उसको हम हैंग कर देते हैं पाइन ट्रीज पे, और उसका काफी दिनों तक फर्मेंटेशन होता रहता है। तो फर्मेंटेड जो मिल्क होता है पाइन्स का, उसको हम टोडी ड्रिंक के फॉर्म में यूज करते हैं। तो साउथ इंडियन सेलिब्रेशंस में पीपल जनरली यूज दिस ड्रिंक। ठीक बेटे, चिलगोजा इज अ फ्रूट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स, वेरी न्यूट्रिशियस फूड इट इज। ओके बेटे, तो इस तरह से वो कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स जो है उनकी भी आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख देंगे। तो आई एम गोइंग टू सेंड यू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। मैंने इससे भी ज्यादा पॉइंट लिखे हैं असाइनमेंट में, आई विल सेंड इट टू यू। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 पर है। हम कहते हैं कि बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स दे बियर सीड्स, देन व्हाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली? तो यू नो द आंसर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में भी सीड है, एंजियोस्पर्म्स में भी सीड है, तो उनको सेपरेट क्यों रखा गया है स्टूडेंट्स? यस बेटे, वेरी इजी कि सीड्स जो है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, यस नेकेड सीड है। ठीक है, नेकेड सीड्स आर देयर, दे आर नॉट enclosed inside the fruit wall because fruits are not developed in case of gymnosperms. और अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में सीड्स जो हैं दे आर कवर्ड। ठीक है, they are covered by the ovary wall by a fruit, so that's why we place them in different divisions. और देखो एंजियोस्पर्म्स में भी we have monocot and dicot. If a single cotyledon is there then it is monocot, if 2 cotyledons are there then it is dicot. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, what is heterospory and briefly comment on its significance. ठीक है, तो देखो नेम से ही पता लग रहा है व्हाट इज हेटेरोस्पोरी। हमने कहाँ पे ये वर्ड यूज किया था, अगर आपको याद आ रहा है, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो उसमें व्हेन वी गिव यू द एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो आई हैव डिस्कस्ड दैट टेरिडोफाइट्स मे बी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, एंड आई हैव आल्सो शेयर विद यू द एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, सेलाजिनिला एंड साल्विनिया, जिसमें मैंने आपको बताया था छोटे स्पोर्स को हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं एंड लार्जर स्पोर्स दे आर नोन एज द मेगास्पोर्स। ओके बेटे, तो हेटेरोस्पोरी इज द फिनोमेना ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 different kind of spores in case of pteridophytes. It may be microspores, that is spores of smaller size, and megaspores, that is spores of larger size. ओके, अब वो कहते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस जो है हेटेरोस्पोरी का ये है कि if we have 2 different type of spores, ठीक है, तो both the spores, microspore and the megaspores, when they germinate they form the 2 different kind of thallus. ठीक है, prothallus, one is the male prothallus that bears the anthidiophore and another is the female prothallus that bears the archegoniophore. ठीक है, तो सेक्सेस का सेपरेशन हमें यहाँ पे पता लगता है, मेल एंड फीमेल थैलस का पता लगता है, और उसमें हमें ये भी पता लगता है कि मेल सेक्स ऑर्गन इज गोइंग टू बी डेवलप ऑन द मेल थैलस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज गोइंग टू डेवलप ऑन फीमेल प्रोथैलस। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हेटेरोस्पोरी इज आल्सो एन एवोल्यूशनरी स्टेप ऑफ दिस प्लांट टुवर्ड्स सीड हैबिट। ठीक है, दो वी हैव नॉट सीन द फॉर्मेशन ऑफ द सीड इन दिस प्लांट्स टेरिडोफाइट, but the plants that are coming after pteridophyte, we are expected that seed formation is there in those plants. So that is the case when we learned about gymnosperms. ठीक है, हमने टेरिडोफाइट में कोई सीड नहीं देखी, पर हमने ये देखा है कि जिस तरह से सीड के डेवलपमेंट के लिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट जो है
वो फिर आर्किगोनिया के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है ना, जाइगोट बनता है। फिर वो कहते हैं कि ये जो जाइगोट होता है, ठीक है, उसके बाद ये जो है एक मल्टी सेलुलर डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट जो है उसको बनाता है। और स्पोर यहाँ पे आपको पता है अलग अलग तरह की है। तो जाइगोट जो है उसको ना प्रीलिमिनरी स्टेजेस पे देखा जाता है कि वो यंग एम्ब्रियो जो है उसमें डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर हैपेंड इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो ये इवेंट जो है वो एक्चुअली पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस से रिलेटेड है जो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है। तो कहते हैं कि इट इज एन एवोल्यूशनरी स्टेप, ठीक है, वेयर द स्टार्टिंग ऑफ द सीड हैबिट टेक्स प्लेस इन द टेरिडोफाइट बट इट जनरली अपीयर्स इन द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स लेटर। अब आपसे वो ऐसे दो टेरिडोफाइट के एग्जांपल पूछ रहा है वेयर हेटेरोस्पोरा इज देयर, so you have to write the example of Selaginella and Salvini. Okay student, I am on page number 45. Question number 8. Explain briefly the following terms with suitable example. Protonema. What is protonema? तो देखो बेटे, आपने याद रखना है कि प्रोटोनिमा टर्म वी हैव हर्ड इन केस ऑफ लिवर, वी हैव हर्ड इन केस ऑफ मॉसेस, ठीक है। इफ यू रिमेंबर द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस, व्हाट यू सी कि when the capsule get mature, then after meiosis in the zygote nucleus which is present in the capsule, the haploid spores they comes out, and when these haploid spores they germinate, they form a creeping branched green color, ठीक है, structure which is in the form of a branch, and they bear so many leaves and they actually grow parallel to the soil surface, and that stage is known as primary protonema. And from the leaves that are present on this primary protonema, some lateral buds they arise in the axils, and from these lateral buds the branches they grow in upward direction, and these branches which grows in upward direction or vertical fashion, they also bear a lot of leaves, and this is actually known as the secondary protonema or the leafy stage. Okay student, next is antheridium. So you know very well antheridium is the male sex organ, and male sex organ antheridium, okay, it is a disc shaped structure. ये disc shaped structure होते हैं bryophytes के केस में, और इसके अंदर male gametes डेवलप होते हैं, and these male gametes are known as the anthrozoids. Okay, so when the antheridium they get mature, then when the wind blows, these anthrozoids or male gametes they comes out from the antheridium, they fall on the water currents, and in this way they reaches the archegoniophore or comes in contact with archegonia XL and fused. ओके बेटे, आर्किगोनिया को इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आर्किगोनिया जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ब्रायोफाइट्स में भी है, जिम्नोस्पर्म्स में भी है, टेरिडोफाइट्स में भी है। स्ट्रक्चर कैसा है उसका? तो इट इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, इसका फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, एंड इनसाइड दिस फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनिया व्हाट इज प्रेजेंट? तो एक्सेल इज प्रेजेंट। तो व्हेन द एंथ्रोजोइड दे comes in contact with archegonia, they enter into archegonia, passes through its neck, fuses with axil and forms zygote. Okay बेटे, डिप्लॉन्टिक वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? तो आपको बताया था कि such plants where the diploid sporophytic phase is the dominant one and the haploid phase is seen only for a few minutes, ठीक है, such type of plants are known as डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ प्लांट्स। तो इसमें आप जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल देंगे कि जो आपको ट्री पूरी टाइम नजर आता रहता है जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में, वो एक्चुअली उसका स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, और सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के दौरान ही उसके अंदर गैमेट्स बनती हैं, व्हेन देयर इज मेयोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल्स, एंड देन मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे आर एक्चुअली फॉर्म, एंड लेटर ऑन व्हेन दे फ्यूज तब फिर से जाइगोट बन जाता है। तो ओवरऑल हमें कौन सा फेज नजर आ रहा है ज्यादा? तो इट इज द डिप्लॉइड फेज, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके बेटा, तो इसके बाद लीवर बॉट, यस, उसके बाद स्पोरोफिल के बारे में पूछा उसने आपसे। तो वेयर यू हैव हर्ड दिस टर्म, तो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि स्पोरोफिल टर्म इज एक्चुअली यूज्ड फॉर लीव्स, ठीक है, लीव्स के लिए ये टर्म यूज की गई है, टेरिडोफाइट्स में भी और जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है बेटे। तो जो लीव्स होती हैं उनको स्पोरोफिल कहा जाता है। अगर छोटे साइज के लीव्स हैं देन दे आर नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, इफ द लीव्स दे आर ऑफ बिगर साइज दे आर नोन एज मैक्रो और मेगास्पोरोफिल, and those leaves which are present at the tips of the branches they fold to form the male and the female stabuli or cone, ठीक बेटे। तो स्पोरोफिल टर्म किसके लिए यूज की गई है? लीव्स के लिए।
फिर देखिए आइसोगैमी, कहाँ पे सुनी है ये टर्म आपने? आइसोगैमी टर्म आपने सुनी है जब हम आपको बता रहे थे एल्गी की डिफरेंट क्लासेस के बारे में और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक बेटा, ये टर्म आपने फंजाई के केस में भी सुनी है पिछले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो आइसोगैमी इज अ काइंड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which the fusing gametes, male and female gametes, both are of equal size. ठीक है, दोनों ही इक्वल साइज के होते हैं, मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी। तो उनके बीच में जो फ्यूजन होता है इक्वल साइज वाले गैमेट्स के बीच में, उस प्रोसेस को हम आइसोगैमियन कहते हैं और इस तरह के गैमेट्स को आइसोगैमस गैमेट्स कहते हैं। ओके बेटे, अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में आपने डिफरेंशिएट करने हैं, तो मैंने आपको बोला था यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट टेबल। जितने पॉइंट उस टेबल में लिखे हैं वो तो आपने लिख ही देने हैं, एंड इन एडिशन टू दोस पॉइंट्स व्हिच आर गिवन इन द पैराग्राफ that you can also write. Okay, so today I am also going to send you the detailed notes of this chapter plant kingdom also. So after going through those notes you are able to give the answer of all the questions. So I am not going to explain here. थोड़ा सा बता देती हूँ। रेड एल्गी के केस में कौन सा पिगमेंट है? फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, एंड अगर ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो उसमें फ्यूकाजेंथिन इज द मेन पिगमेंट। तो क्लोरोफिल तो है ही, उसके साथ किसकी वजह से उसका वो कलर है वो बताना जरूरी है। तो ब्राउन शेड जो है फ्यूकाजेंथिन की वजह से है, एंड रोडोफाइसी जो है उसका रेड शेड जो है वो फाइकोइरिथ्रिन की वजह से। ठीक है बेटे, तो दोनों ही एल्गीज मैरीन एल्गीज है, आपको बताया था। फ्रेश वाटर में बहुत कम मेंबर मिलेंगे। फिर आपने स्टोर फूड की बात करनी है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च इन केस ऑफ रेड एल्गी एंड लैमिनारिन एंड मैनिटोल इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है, फिर आपने सेलुलोज के सेल वॉल कंपोजिशन के बारे में बताना है। तो अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो सेलुलोज जो है उसके साथ इसमें एल्जिन भी आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगर हम बात कर रहे हैं रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी में पैक्टिन भी आ जाएगा एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी आ जाएंगे सेलुलोज के साथ सेल वॉल। फिर फ्लैजिला के बारे में आप बताओगे। इन केस ऑफ रेड एल्गी फ्लैजिला एब्सेंट रहती हैं एंड ब्राउन एल्गी जो है उसमें अनइक्वल फ्लैजिला लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। ओके बेटे, तो ऐसे करके आप 4 से 5 पॉइंट बना लेंगे। लीवर वॉट एंड मॉसेस में क्या डिफरेंशिएट करना है आपने? तो लीवर वॉट्स में आप बताएंगे कि थैलस जो है उसमें लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक ऑर्गन्स आर वेल डिफरेंशिएटेड। मॉसेस जो है उसके अंदर भी डिफरेंशिएशन हो रखा है बट वो लेसर एक्सटेंट। ठीक बेटे, लीवर वॉट्स जो है उसके अंदर एंथीडी एंड आर्किगोनियोफोर दे आर प्रेजेंट on the haploid gametophytic thallus, but in case of mosses primary protonema and secondary protonema stages are there. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो इनके बेसिस पे डिफर करती हैं मॉसेस एंड लिवर वॉट्स। फिर देखिए होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो you know that homosporous pteridophytes are those pteridophytes in which all the spores that develop inside the strobili or cone they are of the same type। तो इसमें प्रोथैलस भी एक ही बनेगा और उसी पे एंथ्रिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर इज देयर। पर अगर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात करते हैं देन 2 टाइप ऑफ कोन्स आर देयर, मेल स्टॉपुलाई, फीमेल स्टॉपुलाई। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, देन माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, देन मेयोसिस एंड देन माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, एंड व्हेन दे जर्मिनेट माइक्रोस्पोर फॉर्म मेल थैलस, मेल प्रोथैलस, एंड मेगास्पोर फॉर्म फीमेल। चल रही है क्लास चल रही है। ठीक बेटे, तो मेल एंड फीमेल प्रोथैलस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने देख लेना है कि मेल प्रोथैलस है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आर्की एंथ्रिडियोफोर एंड उसके ऊपर आर्किगोनियोफोर बनेंगे। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पे जो है बनते हैं। तो देखिए सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन वेरी इजी, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। व्हेन द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द egg cell that is present in the central position in the egg apparatus surrounded by 2 synergids, then this fusion between first male gamete and the egg cell is known as syngamy or fertilization. ठीक बेटे, ट्रिपल फ्यूजन, तो you know that the second male gamete fuses with 2 polar nuclei. So all of these are 1n, so polar nuclei, both of these polar nuclei are also 1n plus 1n, and second male gamete is also 1n. So a triploid structure is formed, that is a 3n structure, and it is known as primary endosperm nucleus which develops into endosperm. Okay बेटे, तो this completes question number 9.
Now I am on question number 10. How would you distinguish between monocot and dicot? तो ये आपने क्लास 9th में 10th में भी कई बार किया हुआ है। तो देखो बेटे मोनोकॉट्स की पहचान कैसे करोगे? तो पहली चीज है कि ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। इन केस ऑफ मोनोकॉट्स जो है उसमें सिंगल कॉटिलेडॉन होती है विच इज नोन एज स्कूटैलम। ओके, स्कूटैलम स्पेलिंग इज SCUTELLUM, scutellum is the single cotyledon present at the lateral position of the seed in case of monocot, and in case of dicot two cotyledons they are present. ओके बेटे, तो मोनोकॉट्स जो है उसमें जनरली ग्रासेस और मॉडिफाइड ग्रासेस आ जाती हैं। उनकी हाइट जो है वो हर्ब्स की तरह होती है। डाइकॉट्स जो है उसमें टॉल टेरेस्ट्रियल ट्रीज आ जाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, in case of monocots, when you observe the leaves of the monocots, they always have parallel वेरिएशन। उसमें हमेशा पैरेलल वेरिएशन होती है। आपने बीट के लीफ देखे हुए हैं, ठीक बेटे। तो कभी अगर आप फील्ड में गए हो, आपने बीट के लीफ देखे हैं, दे हैव पैरेलल वेरिएशन लाइक बनाना लीव्स। एंड इन केस ऑफ डाइकॉट हमेशा रेटिकुलेट वेरिएशन होती है। देयर इज अ मेन मिडरिप, ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय सो मेनी अदर वेन्स और वेनलेट्स। तो पीपल का लीफ आपने देखा हुआ है, वो डाइकॉट लीफ का एग्जांपल है। फिर देखिए रूट सिस्टम को लेके याद रखिए, मोनोकॉट ऑलवेज हैव फाइब्रस रूट्स। मोनोकॉट में हमेशा फाइब्रस रूट्स होती है, एंड डाइकॉट्स जो हैं उनमें हमेशा टैप रूट सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटे। एक लास्ट डिफरेंस जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। यू नो दैट वेस्कुलर बंडल्स में हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आ जाती हैं। तो व्हेन यू टेक द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम और रूट ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट, तो अगर आप मोनोकॉट्स जो है या फिर डाइकॉट्स जो है उसके स्टेम का अगर ट्रांसफर सेक्शन लोगे ना और उसे माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करोगे, तो यू सी दैट इन केस ऑफ मोनोकॉट ऑल द वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड डाइकॉट के केस में वेस्कुलर बंडल्स दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। सेंटर में से खाली जगह होती है विच इज नोन एज पिप। एंड अनदर पॉइंट इज कि मोनोकॉट्स जो है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ या वुड फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। आपको कभी भी बीट के स्टेम जो है वो मोटे नहीं नजर आते, उसमें कभी वुड नहीं बनती। और अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट जो है वो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, इसलिए उसमें वुड फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। ओके बेटे, आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इजी। मैच द कॉलम्स, कॉलम 1 विद कॉलम 2। क्लामाइडोमोनास को किसके साथ मैच करेंगे स्टूडेंट्स? एल्गे। यस, आंसर इज एल्गी। साइकस को बेटे किससे मैच करेंगे? साइकस को जिम्नोस्पर्म। हाँ जी, सोच के जवाब देंगे। साइकस, जिम्नोस्पर्म्स, वेरी गुड। सैलाजिनेला को, सैलाजिनेला कहाँ सुना है आपने? इट इज अ टाइप ऑफ ए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, ठीक बेटे। तो टेरिडोफाइट का एग्जांपल है स्फिग्नम। कहाँ पे सुना है स्फिग्नम? इसको आपने ब्रायोफाइट के केस में सुना है, और ये एक मॉस का एग्जांपल है। मैं ये भी बता देती हूँ, स्फिग्नम एक ऐसा मॉस होता है जो काफी समय तक वाटर को होल्ड करके रख सकता है। तो जब हमने शिपिंग करनी होती है वेजिटेबल या फ्रूट्स की, जैसे इंडिया से हमने फ्रूट अमेरिका भेजना है, ठीक बेटे, तो कितना टाइम लग जाएगा शिप में? ओके, तो इसलिए इस तरह के फ्रूट्स जो है उनकी रैपिंग जो है वो हम स्फिग्नम से करते हैं, क्योंकि वो काफी समय तक वाटर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो आपने वो सारे करेक्टर्स लिख देने हैं जो मैंने आपको जनरल फीचर्स के अंदर बताए थे। नंबर 1 करेक्टर है कि सीड्स आर नेकेड, सीड्स नेकेड होती हैं, नॉट सराउंडेड बाय ओवरी वॉल, ठीक बेटे। उसके बाद हमने लिखना है कि मीडियम साइज ट्रीज भी होती हैं, टॉल ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं। टॉल ट्रीज में एग्जांपल देंगे सुकोया, ठीक है। रूट्स कैसी हैं? तो माइकोरिजल एसोसिएशन प्रेजेंट है, टैप रूट्स हैं ये, और माइकोरिजल एसोसिएशन प्रेजेंट है। साइकस जो है, ठीक है, उसमें कोरोलॉइड रूट्स होती हैं। फिर आप ब्रांचेस के बारे में बताओगे कि अनब्रांच भी हो सकते हैं, स्टेम ब्रांचेस वाले भी हो सकते हैं। पाइनस में ब्रांचेस वाले हैं, साइकस में अनब्रांच्ड एंड लीव्स पिन्नेट लीव्स है, लीगल शेप है, ठीक है। ह्यूमिडिटी एंड विंड वाली क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं। सबकन स्टोमेटास है, नीडल शेप लीव्स है,
ये सारा वाटर जो है उसको कंजर्व करने के लिए। ओके बेटे, तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। सो टुमारो वी विल गो विद एनिमल किंगडम। ठीक है, तो यू हैव टू डू योर क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। So all the NCERT should be there in your notebook. I will send you the worksheets in holiday. मतलब जो